So let's start with the solution of this case study. Here we have a supplier part database, and you have to design an ER model for this situation where it is clearly written that one supplier is supplying multiple part, and for a given part there are multiple suppliers. Whenever supplier supplies some part, we have to maintain the quantity in which the part is supplied. So we have to maintain the information about the quantity which supplier is supplying to a particular part. Every part has a unique supplier number, and other field of interest are name and city. While in case of part, we have part number, and other field of interest are name and color. So we know that whenever we have requirement sheet, we have to read the contents one by one, and we have to identify noun and verbs for identification of entities and relationships. So let's do that. So here I have broken these requirements on line by line basis. And now on the side by side, I will design an ER model with your help. And I wish that you should unmute yourself to give me the answers, what you have found. So in first line, we have ER model for supplier part database, where one supplier can supply multiple parts. And for a given part, there are multiple suppliers. How many nouns are there in this particular line? Two. Those? Supplier and Part. And part. So we have to, so you know that for every noun, we have to create entity set. So I will create one entity set for, let's suppose, S for supplier and P for part. Now, it also talk about the relationships. So where one supplier can supply multiple parts. So we have a verb here, which is supply. So it means that there is a relationship between supplier S and P. So this relationship, let's suppose we named it as SP. So where it says that one supplier can supply multiple part, and for part there are multiple suppliers. So what is the type of relationship we have in this situation? Many to many. many to many. Many to many. For this, we need a non-directional line. So this already indicates a situation of many to many. Good. So now we can move to second line. Whenever supplier supplies some part, we have to maintain the quantity in which the part is supplied. So here it is mentioning that key, whenever supplier supplies some part, we have to store the information of quantity. It means that here it is talking about some quantity. So is it a attribute? Is it a relationship, or is it a entity? What do you feel? What is this quantity in this case? Attribute. So yes, quantity is an attribute. So then the important point to decide that this quantity attribute belong to which entity set? Is quantity belong to supplier, part, or something else? So quantity kahan banao? So I have to give quantity. Yes. Quantity kahan hona chahiye? Part. relation. तो अब क्वांटिटी जो है, क्या वो सप्लायर का एट्रीब्यूट है, क्या क्वांटिटी पार्ट का एट्रीब्यूट है, या क्वांटिटी रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है? तो क्वांटिटी पिक्चर में कब आता है? जब सप्लायर पार्ट सप्लाई करेगा, उससे पहले क्वांटिटी पिक्चर में नहीं है. यू कैन सी दैट कि सप्लायर के अपने एट्रीब्यूट है, पार्ट के अपने एट्रीब्यूट है, जो अगली लाइंस में हमने लिखे हैं. लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है, ये पिक्चर में तब आता है जब सप्लायर पार्ट को माल सप्लाई करता है, यानी कि जब शिपमेंट होती है, जब उनके बीच में रिलेशनशिप. व्हेन एवर सप्लायर सप्लाई सम पार्ट, जब सप्लाई हो रहा है माल, तभी क्वांटिटी स्टोर करनी है. तो जो सप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब रिलेशनशिप की बात हो रही है. और ये एक पहला सिचुएशन है जो हमें ये बता रही है कि सम टाइम एन एट्रीब्यूट कैन बिलोंग टू रिलेशनशिप ऑल्सो. तो जरूरी नहीं है एंटिटी के ही एट्रीब्यूट होंगे, एट्रीब्यूट रिलेशनशिप का भी हो सकता है. बाकी काम अब सिंपल है. तो सप्लायर के एट्रीब्यूट जो है वो मेंशन किए गए हैं कि सप्लायर नंबर है, हमें नेम स्टोर करना है उसका, और हमें उसकी सिटी स्टोर करनी है. सो दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ सप्लायर. Similarly, for part, we have to store part number, name, and color information. So these are the attribute of part. So this is the case, and you now you can feel that you are already very familiar with this data set, and you know that we have discussed a table or 3 tables where we have SP and SP tables.
So this is the same data sets ER model where we have created 3 tables. So later on, why we have created 3 tables for this, what are the columns in these tables, we will learn that during the process of conversion of ER model to tables. तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे ER से टेबल्स कैसे बनते हैं, तो तब आप ये सीखेंगे कि S के कौन से एट्रीब्यूट होंगे, P के कौन से एट्रीब्यूट होंगे और SP के कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कितने टेबल बनाने हैं और उनके कौन कौन से कॉलम होंगे. बट अगर आप रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यस, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ER मॉडल. If you have any doubt in this, you can ask me any question. Important take of this example is that yes, sometime an relationship can have an own attribute. Yeah. So now we are moving to another example. Again, I will ask you to design the ER model for this situation. So you have to design ER model to capture the relationship between employee and manager. तो अब आपको एक ER मॉडल बनाना है जिसमें एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच के रिलेशनशिप को कैप्चर करना है. आपको एंटिटी सोचनी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट सोचने हैं और उनके बीच के जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है उसके बारे में भी थॉट देना है. एक तरफ एम्प्लॉय है, दूसरी तरफ मैनेजर है. सो टेक योर टाइम, यू हैव 1 minute and after this we will discuss the solution. So please again use your notebook and pen and try to draw the ER model on your notebook. I will discuss the solution after 1 minute. So let us design the solution of this problem now. So here we have to design ER model for employee and manager. So of course we have 2 entity set. So you can call the first entity set as employee and second entity set as MGR, let's suppose manager, and we have a relationship between employee and manager. So what is the type of relationship एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप का है? मैनी टू वन. मैनी टू वन. तो मैनी इस तरफ है और वन यहाँ पे है. तो आप कहना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैनेजर है और मैनेजर के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं. सो यस, यू आर ट्रू. सो दिस इज अ मैनी टू वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप. हियर वी हैव M and here we have 1. एक एम्प्लॉय के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही मैनेजर होगा लेकिन मैनेजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयज मल्टीपल होंगे. गुड. नाउ गिव अ थॉट अबाउट द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स दे हैव. सो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट तो सिंपल है. हर एम्प्लॉय का एक अपना नंबर होगा, उसकी एक नेम होगी, उसका एक जॉब टाइटल होगा, उसकी एक सैलरी होगी. सो लेट्स सपोज दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय. नाउ व्हाट अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजर? जो मैनेजर है उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसके ऊपर थोड़ा थॉट दीजिए. जो मैनेजर है उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, बोलिए. सर एक तो कि वो कौन कौन से एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है. ओके. So department. वो तो एम्प्लॉय का भी होगा. मैंने तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बनाया नहीं है. वो तो उसका एक रिलेशनशिप है. अगर आप डिपार्टमेंट की बात करते हैं सो वो जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट होगा. तो यहाँ कहीं पे डिपार्टमेंट मैं बनाऊंगा और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होगा और डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट होंगे. और अगर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की बात करूंगा तो एक डिपार्टमेंट में काफी सारे होंगे और यहाँ पे 1 होगा. तो इस तरह से 1 to many टाइप का एक डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप है. तो ये डिपार्टमेंट आगे मैनेजर से भी कनेक्ट आप कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट विल बी ए सेपरेट एंटिटी सेट. So try to understand that department is a attribute. Department number is attribute of department. It is not a attribute of employee. So this I want to make it clear. मैनेजर के एट्रीब्यूट क्या होंगे? जो मैनेजर है उसका एम्प्लॉय नंबर होगा या नहीं होगा? जो मैनेजर है उसका एम्प्लॉय नंबर होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है. होगा सर. होगा सर. होगा. लेट्स एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय नंबर. मैनेजर का नेम होगा अपना या नहीं होगा? होगा. यस. ये एक सैलरी भी होगी, वो एक जॉब भी करेगा. तो अगर आप मोटे तौर पे देखते हैं तो जो मैनेजर है उसके एट्रीब्यूट और जो एम्प्लॉय है उसके एट्रीब्यूट सेम है. बिकॉज मैनेजर इटसेल्फ इज ए एम्प्लॉय. तो मैनेजर अपने आप में एक एम्प्लॉय है और मैनेजर को भी वो सारे काम करने हैं जो बाकी एम्प्लॉयज कर रहे हैं. बट जस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ मैनेजर को कुछ एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है.
और उसको मैंने स्टोर करने के लिए रिलेशनशिप बनाया हुआ है कि भाई ये मैनेजर इनको मैनेज कर रहा है, और ये इंफॉर्मेशन कौन वो किनको मैनेज कर रहा है वो इस रिलेशनशिप में स्टोर्ड है। वो ये रिलेशनशिप का काम है कि ये स्टोर करना कि ये इस एम्प्लॉय के कौन से मैनेजर है। बट ऑफ कोर्स अगर आप मैनेजर के एट्रीब्यूट की बात करोगे तो उसका भी अपना एक नंबर है, उसका भी एक नेम है, उसकी भी एक सैलरी है और उसकी भी एक जॉब है, और एम्प्लॉय के भी सेम काम है। तो ये एक बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन बन गई। अगर मैं इसको अगले स्टेप में बनाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैनेज दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैनेजर दिखा रहा था, और उनके एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब और सैलरी हैं, और यहाँ पे भी नेम सेम है। तो मैं इस एट्रीब्यूट को, इस एंटिटी सेट को बी एम्प्लॉय कह सकता हूँ। इसका मतलब एक तरह से एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ ही रिलेशनशिप है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है या इंटर कनेक्टेड है। So this is a particular situation where we have two entity set, but both the entity set share same role and same number of attributes. तो जब entity set के attribute same हैं, तो मुझे इसको अलग से क्यों दिखाना? मैं इसको क्यों ना उसी के साथ ही जोड़ के दिखा दूं? तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी एम्प्लॉय बोल सकता हूं और इसको भी एम्प्लॉय बोल सकता हूं, बट अब दोनों का रोल डिफरेंट है। ये वाला एम्प्लॉय किसका है? ये वाला एम्प्लॉय मैनेजर का है, और ये वाला एम्प्लॉय किसका है? वर्कर्स का है। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये एंटिटी सेट किसके लिए है और ये एंटिटी सेट किसके लिए है, मैं रिलेशनशिप को लेबल कर देता हूं। इसको बोल देता हूं ये वर्कर वाला पार्ट है और ये मैनेजर वाला पार्ट है। तो अब मैं कह रहा हूं कि एक एम्प्लॉय मैनेज करता है काफी सारे वर्कर को, और वर्कर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैनेजर है, बट एंटिटी सेट दोनों एम्प्लॉय ही हैं। So two entity set employees are connected with each other through a relationship named as manage. On one side we have a manager where I am storing the details about the manager, and on other side there are some workers. So एक manager के अंदर काफी सारे वर्कर हैं, लेकिन एंटिटी सेट एक ही है क्योंकि दोनों के एट्रीब्यूट सेम है। तो अब मैं दोनों को अलग अलग बनाने के लिए, सो दिस इज लेट्स सपोज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। अब दोनों को मैं अलग अलग दिखाने की बजाय मैं एक और स्टेप करता हूँ, फिर आप इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो ये एम्प्लॉय था, उसके नंबर था, नेम था, जॉब थी और सैलरी था, ये इसके एट्रीब्यूट है, और मैं बात कर रहा था कि इनका रिलेशनशिप है। और यहाँ पे मैं क्या बना रहा था, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय दिखा रहा था। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे अलग अब एम्प्लॉय बनाने की भी क्या जरूरत है, मैं इसी को यहीं से वापस मोड़ दूं, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप दिखा देता हूँ, और मैं इसका नाम रख देता हूँ मैनेज, और यहाँ पे कह देता हूँ कि ये वाला वर्कर का है और ये वाला मैनेजर का है, और एक ही एंटिटी सेट को मैं आपस में घुमा देता हूँ। अब ये भी रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिलेशनशिप कितनी एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है? बोलो, ये रिलेशनशिप कितनी एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है? एक के साथ। एक के साथ। तो ये यूनरी टाइप का रिलेशनशिप हो जाएगा जो फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल कि एक ही एंटिटी सेट, एक ही एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है, और उसके लिए हम यूनरी टाइप का रिलेशनशिप यूज करेंगे। और मैं अब डिस्टिंग्विश करने के लिए रिलेशनशिप को यहाँ लेबलिंग कर दूंगा, एक तरफ वर्कर और एक तरफ मैनेजर। अगर आप इसको कंप्लीटली देखेंगे तो दिस इज द डिटेल कि एम्प्लॉय है, वी हैव एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड ऑल दोज एट्रीब्यूट्स। So yes, manager will also have the same attributes. So मैंने अलग से अगर इसकी स्टेप सोचे तो पहले यहाँ मैनेजर बनाया होगा, फिर ये खत्म हुआ, फिर ये एम्प्लॉय बना, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय का आपस में रिलेशनशिप है, एक वर्कर है तो दूसरा मैनेजर है, ये वन है और ये मैनी है। एक मैनेजर के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मैनेजर भी एम्प्लॉय है और वर्कर भी एम्प्लॉय है। सो I hope that this particular ER model carry lot of same information but in a very simplified way. So I called this as a यूनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। क्या हमने इसकी एग्जाम्पल को पहले डिस्कस किया है कहीं? अगला केस, क्या हमने इस सिचुएशन को पहले अपनी क्लास में कभी? हाँ जी, सेल्फ जॉइन में करा था। हाँ, तो हमने सेल्फ ज्वाइन में करा था। तो सेल्फ ज्वाइन अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, सेल्फ ज्वाइन में हमने एक एम्प्लॉय टेबल लिया था, और उस एम्प्लॉय टेबल में मैंने बोला था कि एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, जॉब है, सैलरी है, और यहाँ मैनेजर नंबर ऐड कर दिया था।
और जो मैनेजर नंबर था ये उसका एम्प्लॉय नंबर ही था। तो ये जो टेबल था, ये टेबल क्यों बना? ये टेबल ऐसा इसलिए बना क्योंकि इनके बीच का एक यूनियन रिलेशनशिप था। तो अगले सेशंस में हम ये सीखेंगे कि जब आप इस ईआर का टेबल कन्वर्ट करेंगे तो टेबल कैसा बनना चाहिए। इसका टेबल बनेगा ई नंबर, ई नेम, then you will have job, salary and manager number। तब आप यहाँ मैनेजर नंबर ऐड कर देंगे और इसका सेपरेट टेबल नहीं बनाएंगे, एक ही टेबल में सब कुछ स्टोर हो जाएगा। तो क्यों एक टेबल में स्टोर होगा, क्या रूल है, क्या गाइडलाइंस है, वो सब कुछ अगली डिस्कशन है। तो पॉइंट ये आप समझ सकते हैं ब्रॉडली कि जब एक फाइनल टेबल बनता है उसके कौन से कॉलम्स होंगे, वहां तक जाने के लिए आपको सबसे पहले उसकी जो ईआर मॉडल है उसको बनाना या उसको समझना जरूरी होता है, और उस सिचुएशन से निकल के ही हम फाइनल एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। सो दिस इज द केस वेयर वी हैव ए यूनिनरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और इस एग्जांपल से आप इस बात को समझ सकते हैं। So now we have discussed about degree of relationship. So this is a example of binary relationship where I have a customer and account. Customer ने अपना account किस date को access किया था, तो वो date अगर store करनी है तो वो relationship पर बात depend करेगी। ये customer के attribute है, ये account के attribute है, and I want to store the date of access. Date of access तभी picture में आएगी जब वो customer अपना account को access करेगा या amount deposit करेगा, otherwise date of access picture में नहीं आएगी। Date of access is not an attribute of account and it is not an attribute of customer. It is an attribute of relationships. तो आज हमने ये भी पढ़ा, इसकी different example है। Similarly, यहाँ आप देखते हैं कि quantity is an attribute of relationship। हमने दो केस देखे थे, supplier और part का। इसमें मैं प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। जब हमने कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल की के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने प्रोजेक्ट जे नाम का टेबल भी ऐड किया था, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन की ये ईआर डायग्राम है, और इसमें आप देखते हैं कि क्वांटिटी रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रही है, और ये टर्नरी रिलेशनशिप है क्योंकि तीन एंटिटीज के साथ कनेक्टेड है। And sometime it is also possible to have unary relationship where we have example of manager and worker. So these are the points which I want to share with you. If you have any doubt, you can ask me any question.